Students of 8th standard. Today I am going to continue with the third chapter of the geography. Differences between हम लोग करेंगे. पहला है humidity and cloud. The difference between humidity cloud will be differences between humidity and cloud. Humidity is the atmospheric phenomenon. It is the amount of water vapor present in the atmosphere, whereas cloud is visible mass of condensed water vapor which are floating in the sky. Humidity the atmospheric phenomenon. Humidity एक atmospheric factor है. It is the amount of water vapor present in the atmosphere. ये एक amount of water vapor है जो atmosphere में present है. Cloud is visible mass of condensed water. Cloud जो है condensed water का quantity है which are floating in the sky, जो sky में float होता है. तो पहला point humidity is the atmospheric phenomenon. First point, humidity एक atmospheric factor है. Humidity मतलब होता है जो भी water vapor present है air में उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं. क्लाउड जो होता है कंडेंस वाटर वेपर है, जो वाटर वेपर आइस में कन्वर्ट हो जाता है उसको बोलते हैं क्लाउड विच आर फ्लोटिंग इन द स्काई, जो आसमान में फ्लोट होता है. तो योर आंसर विल बी पॉइंट वाइज. ह्यूमिडिटी से फेनोमेना फर्स्ट पॉइंट. इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, क्लाउड इज विजिबल कंडेंस ऑफ वाटर वेपर विच आर फ्लोटिंग द स्काई, थर्ड पॉइंट. तो ह्यूमिडिटी से फेनोमेना फर्स्ट पॉइंट, इट इज से एटमॉस्फेयर सेकेंड पॉइंट, क्लाउड से स्काई थर्ड पॉइंट. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग. ह्यूमिडिटी से फेनोमेनन फर्स्ट पॉइंट, एडिस से लेके एटमॉस्फेयर सेकेंड पॉइंट, क्लाउड से लेके स्काई थर्ड पॉइंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी relative humidity and absolute humidity. The answer will be relative humidity is the humidity content of atmosphere expressed as percentage of amount needed for saturation. First point. Relative humidity मतलब होता है humidity content of atmospheric expressed as percentage of the amount needed for saturation. Absolute humidity is also the amount of water vapor in the air, right? Relative humidity is the humidity content of atmospheric expressed as percentage of amount needed for saturation. मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब ह्यूमिडिटी जो होती है परसेंटेज में दिखाते हैं जो अपने को सैचुरेशन के लिए ज़रूरी है. तो योर आंसर विल बी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ द ह्यूमिडिटी कंटेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एक्सप्रेसेस परसेंटेज ऑफ अमाउंट नीडेड फॉर सैचुरेशन एट द सेम टेम्परेचर. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज़ ऑल्सो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब होती है वाटर वेपर जो प्रेजेंट है एयर में वो, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर. इज़ दिस क्लियर? तो दोनों का पॉइंट क्लियर हो गया. So relative humidity is the humidity content of atmospheric expresses percentage of amount needed for saturation at the same temperature. And second point, absolute humidity is also the amount of water vapor in the air. Basic difference stand the relative humidity takes in account the temperature but not absolute humidity. ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये दो पॉइंट लिखा तो भी चलेगा. Relative humidity is the humidity content of atmospheric expresses percentage of amount needed for saturation at the same time temperature. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. तो दो पॉइंट का आंसर है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी से लेके टेम्परेचर तक फर्स्ट पॉइंट, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से लेके एयर तक सेकेंड पॉइंट. 2 पॉइंट्स आंसर इट इज. नेक्स्ट विल बी क्यूमुलस क्लाउड एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड. क्यूमुलस क्लाउड एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, इसको प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर करना है. क्यूमुलस क्लाउड एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड. ठीक है. The answer will be these cumulus cloud that are founded from 500 meter to 6000 meter altitude having comparatively less vertical span. Cumulus cloud are the indicator of pleasant weather. Again repeating, these clouds are found from 500 meter to 6000 meter altitude having comparatively less vertical span. मतलब ये जो क्लाउड होता है 500 मीटर से लेके 6000 मीटर तक फैला रहता है और इसका वर्टिकल एक्सपांड कम रहता है. क्यूमुलस क्लाउड आर द इंडिकेटर ऑफ प्लेजेंट वेदर. ये जो इंडिकेटर है प्लेजेंट वेदर का इंडिकेटर है. क्यूमुलस क्लाउड, दिस क्लाउड्स आर फाउंड फ्रॉम 500 मीटर 6000 मीटर अल्टीट्यूड हैविंग कंपैरेटिवली मोर वर्टिकल एक्सपांशन. इसका वर्टिकल एक्सपांशन ज़्यादा रहता है. ये भी 500 मीटर से 6000 मीटर हाइट पे मिलता है. क्यूमुलस क्लाउड आर द इंडिकेटर ऑफ स्टॉर्म. ये थंडर और स्टॉर्म का इंडिकेशन है. इज दिस क्लियर? ओके. तो जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है वो 500 मीटर 6000 मीटर हाइट पे मिलता है और इसका वर्टिकल एक्सपांशन ज़्यादा होता है और ये थंडर और स्टॉर्म का इंडिकेटर है. तो these two points will be the answer of cumulonimbus cloud. तो cumulus cloud and cumulonimbus cloud का दोनों का आंसर मिल गया. इसके भी 2 पॉइंट है, इसके भी 2 पॉइंट है. ये भी 500 से 6000 मीटर तक मिलता है लेकिन इसका वर्टिकल एक्सपांशन कम है और ये प्लेजेंट वेदर अच्छे मौसम का इंडिकेटर है. ये भी 500 से 6000 मीटर है लेकिन इसका एक्सपांशन ज़्यादा है और ये थंडर स्टॉर्म का इंडिकेटर है. इज दिस क्लियर? तो दिस विल बी द आंसर ऑफ
differences between cumulus cloud and cumulonimbus cloud. Then students, you have to write the difference between of A, B and C as a homework for today. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.